Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to this video. So I hope आपकी FCI EG3 की preparation is going very well. आप अच्छे से prepare कर रहे होंगे for this examination. Now अगर आप उनमें से हैं जो अभी सोच रहे हैं कि we should start preparing for this exam and you wanted to know कि difficulty level क्या रहता है, जितने भी subjects पूछे जाते हैं किस difficulty level के questions पूछे जाते हैं from each subject. Today in this video I am going to discuss about that so that it is easier for you to decide whether you wanted to prepare for this examination or not and you can yourself see कि किस level के questions आते हैं exam में. So that's the agenda of this video. But before I start, I wanted to tell you regarding notification. अभी कोई information नहीं है. As soon as we get any kind of information, we will be the first one to inform you. And also, अगर आप इस examination की अच्छे से preparation कर रहे हैं and you are seriously preparing for this examination or you are looking forward for preparation of this examination, so we have compiled an ebook for you where you will get all the decoded syllabus. Along with that, you will get a set of previous year questions. Now, we all know syllabus and pre-YQs are very, very important when you prepare for any competitive examination. So if you want that ebook, you have to go to the description box, click on the link, register yourself and download that ebook for yourself. So with that, I'll start the video and let us understand today in this video कि क्या difficulty level रहता है through the exam pattern of FCI. So पहले exam pattern देखते हैं. So if we see the exam pattern of FCI का जो exam है वो दो phases में होता है. There is phase 1 and then there is a phase 2, right? Now अगर हम phase 1, phase 2 की बात करें, so phase 1 में आपके जो questions पूछे जाते हैं और subject जो test किए जाते हैं that are from subjects like English, Reasoning, Numerical Aptitude, General Studies, right? Now students, अगर हम ये subjects देखें, especially your Reasoning, Quants and English, ये बहुत सारे और भी competitive examination में पूछे जाते हैं, but जो level होता है questions का that varies, right? वो completely vary करता है हर exam to exam. Now what I mean by level of question, किस तरीके level of question से क्या मतलब है यहाँ पे? Basically आपके किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. लाइक फॉर से लेट मी गिव यू द एग्जांपल, अगर हम आरबीआई का एग्जाम उठाते हैं या बैंक पीओ का एग्जामिनेशन उठाते हैं तो वहां पे जो डिफिकल्टी लेवल रहता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का, दैट इज वेरी हाई. वहां पे काफी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नाउ वहीं अगर हम आपके एसएससी या बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन को उठाते हैं तो वहां पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इजी टू मॉडरेट रहते हैं, राइट? Now coming back to FCI में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो स्टूडेंट्स इन FCI ऑल्सो जो आपका क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश है वो स्पेशली इन फेज 1, जो फेज 1 है वहां पे आपको मोस्टली इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट? सो यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल रहता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का वो इजी टू मॉडरेट टाइप रहता है. एंड स्पेसिफिकली इन फेज 1 ये मोर towards easy type questions आपको देखने को मिलेंगे, right? So you can see there will be 25 questions each from quant, reasoning, English. Then maximum marks allotted again 25. But यहाँ पे क्या है? Sectional timing है. तो आपने यहाँ पे जब भी आप प्रैक्टिस करो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की, यू हैव टू सी कि आप एक टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करो, राइट? आप देखो कि आप 15 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस एक्यूरेटली सॉल्व कर पा रहे हो, बिकॉज इन क्वांट एंड रीजनिंग स्पेशली एक्यूरेसी ऑल्सो मैटर, अदरवाइज आपके नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे, राइट? सो आप प्लीज टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करो एंड ट्राई टू प्रैक्टिस इजी टू मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर योर फेज 1. फेज 1 में मोस्टली आपके इजी टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नाउ कमिंग टू जनरल स्टडीज. नाउ स्टूडेंट्स, जनरल स्टडीज अगर हम देखें एफसीआई में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं अंडर योर जनरल स्टडीज. नाउ इट कंप्राइज ऑफ योर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस. ओके, नाउ यहाँ पे ऑलरेडी इट इज मेंशन अप टू क्लास 8th लेवल. सो अब जो ये क्लास 8th लेवल है वो कहाँ से पढ़ना है? दैट इज द लेवल ऑफ योर एनसीईआरटी. जो एनसीईआरटी क्लास 8th लेवल की होती है जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और जनरल साइंस कवर होता है, वो आपका 8th लेवल का होगा. नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आई वांटेड टू हाईलाइट हियर दैट यहाँ पे 8th लेवल तो मतलब यहाँ पे भी अगेन ईजी ही मानेंगे हम. जनरल साइंस का जो लेवल आता है वो इजी लेवल आता है, बट अगेन ये पढ़ना कहाँ से है? सो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे इट विल टेक टाइम, राइट? आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक की एनसीईआरटी कवर करनी पड़ेगी फॉर फेज 1 एंड फेज 2 मिला के. अभी तो फेज 1 में हम 8th क्लास का लेवल देख रहे हैं. बट हियर स्टूडेंट्स सी अंडरस्टैंड
अब जो जनरल साइंस है अगेन ये भी पार्ट होता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। सो आपको कौन सा एग्जाम रेफर करना है फॉर द जनरल साइंस प्रिपरेशन ऑफ FCI ऑल्सो, सो इट इज योर SSC। जो आपके SSC एग्जामिनेशन में जनरल साइंस का लेवल पूछा जाता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड इन SSC एग्जामिनेशन, दैट इज क्वाइट सिमिलर विद FCI। तो आप SSC एग्जामिनेशन को रेफरेंस में रख के आपका जनरल साइंस को टारगेट कर सकते हो, एंड अगेन इट इज इजी टू मॉडरेट टाइप, राइट। देन देयर इज अ करंट अफेयर ऑल्सो, 5 क्वेश्चंस आर फ्रॉम करंट अफेयर अंडर योर जनरल साइंस सेक्शन। अब ये करंट अफेयर अगेन ये भी इजी टू मॉडरेट टाइप ही होते हैं। इट्स नॉट कि आपको बहुत ज्यादा कुछ अलग करंट अफेयर या कोई रिपोर्ट या फिर कोई बहुत बड़ा स्कीम, कुछ भी इतना हाई फाई लेवल का नहीं होता है। नॉर्मल जनरल करंट अफेयर जो करंट अवेयरनेस होती है वहीं से ये 5 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। सो अगेन 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम this section and 25 marks is allotted. Again sectional timing is of 15 minutes, right? So this is your phase 1 and I hope now you have got the clarity कि क्या difficulty level रहता है आपका phase 1 में। Now let's move ahead to phase 2. Now again students हम phase 2 का exam pattern देखें, especially your phase 2 of paper 1. Now यहाँ पे एक चीज I wanted to clear कि अगर आप जनरल एंड डिपो पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन यू हैव टू गिव ओनली 1 पेपर इन योर फेज 2। अदरवाइज फॉर द रेस्ट पोस्ट लाइक योर टेक्निकल अकाउंट्स, देन यू विल हैव टू गिव योर पेपर 2 एज वेल, राइट। नाउ पेपर 1 इज सेम फॉर ऑल irrespective you have opted general, depot, account, technical and so and so. So let's see कि ये पेपर 1 जो है फेज 2 का, इसका डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है। नाउ स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पे जो पैटर्न देखोगे आप, इट इज क्वाइट सिमिलर टू फेज 1 ओनली, एक्सेप्ट यहाँ पे अब आपका कंप्यूटर अवेयरनेस इज समथिंग दैट इज एडिशनल, राइट। सिर्फ आपका कंप्यूटर अवेयरनेस ऐड हो गया है एंड दैट टू ऑफ 5 मार्क्स। नाउ स्टूडेंट्स अगेन let me talk about this quant reasoning and English. So I have told you in phase 1 थोड़ा सा easier side के questions रहते हैं, but in your phase 2 आपका ज़्यादा moderate type के questions होंगे, okay, moderate type के questions होंगे from your quant reasoning and English. So you can again see 25 questions will be there, 25 marks for each, but time duration has been increased. अब ये जो time duration बढ़ा है इसका reason यही है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फेज 1 के कंपैरेटिवली डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। ऑब्वियसली यू आर सेटिंग फॉर फेज 2, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, राइट। सो फेज 1 में इजी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, फेज 2 में मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा एज कंपेयर टू फेज 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस जनरल साइंस पार्ट, जनरल स्टडीज पार्ट। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे यू कैन सी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इज देयर, 25 क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम दिस पार्ट, ओके। देन जनरल साइंस का लेवल भी बढ़ गया है, दैट इज अब क्लास 10th लेवल, आपका पहले था क्लास 8th लेवल का, अब यहाँ पे क्लास 10th लेवल की जनरल साइंस पूछी जाएगी एंड देयर विल बी 10 क्वेश्चंस। नाउ अगेन फॉर कवरिंग दिस पार्ट, अगर आप फेज 1 के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो देन दैट विल सफाइस योर प्रिपरेशन फॉर जनरल स्टडीज ऑफ फेज 2। अब यहाँ पे लेवल चेंज होता है, नो स्टूडेंट्स इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा लेवल में, टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी ऑलमोस्ट सेम, बट हाँ थोड़ा फेज 2 में ये हो सकता है आपसे थोड़ा इन डेप्थ क्वेश्चंस और पूछे जाएं, राइट। तो वही चीज आपने देखनी है फेज 2 के लिए, बट ये चीज आपने फेज 1 के साथ ही प्रिपरेशन करनी है। देयर विल बी नो सेपरेट प्रिपरेशन ऑफ GS एंड जनरल साइंस फॉर फेज 1 एंड फेज 2। आप फेज 1 में ही अच्छे से ये पार्ट, ये पोर्शन कवर कर लो क्योंकि ये आपके फेज 2 में भी आएगा, राइट। तो दिस इज द डिफिकल्टी लेवल। देन करंट अफेयर अगेन डिफिकल्टी लेवल विल बी सेम, जैसे आपका फेज 1 में पूछा जाएगा वैसे ही आपके करंट अफेयर फेज 2 में भी होंगे। देन कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करी जाए तो ये काफी इजी लेवल के होते हैं क्वेश्चंस, ओके, यू कैन इजीली सॉल्व देम अगर आप थोड़ा सा भी कंप्यूटर अवेयरनेस या कंप्यूटर के बारे में जानते हो, या यू कैन जस्ट रीड अ सिंपल PDF रिगार्डिंग कंप्यूटर अवेयरनेस। तो ये 5 क्वेश्चन इजी लेवल के होते हैं। सो आई होप नाउ यू हैव गॉट द क्लैरिटी कि क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है आपका पेपर 1 ऑफ फेज 2। Now talking about number of marks here, number of questions from quant reasoning English 25, 25, 25. Weightage of this particular section has increased. It is 45 because again यहाँ पे आपके number of questions बढ़ गए हैं and 5 additionally आपके computer awareness के questions add हो गए हैं. Now 1 marks is allotted to each question. You can see it is total of 120 marks and again time there will be sectional time duration and 30 minutes is allotted to your this particular section. Clear? So I hope now you have understood the difficulty level. Now अब मैं थोड़ा सा पेपर 2 जो होता है टेक्निकल वालों का उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो पेपर 2 है आपका टेक्निकल का, वहां पे देयर आर 2 ग्रुप A एंड ग्रुप B, राइट। ग्रुप A में क्या आता है आपका
एग्रीकल्चर, बॉटनी एंड जूलॉजी, एंड ग्रुप बी में आता है एग्रीकल्चर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट। अब अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें इसकी, तो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल इज अगेन इजी टू मॉडरेट टाइप। आपका जो बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, ये आपका अगेन 11th-12th लेवल का आता है, which I will say is again easy level. Okay, it's not very tough level of botany, zoology they are asking you. अगेन एग्रीकल्चर भी जो है वो काफी कंसेप्चुअल आता है, बहुत ही बेसिक एग्रीकल्चर पूछा जाता है। तो अगेन जो आपका पेपर 2 है टेक्निकल का, वो इजी टू मॉडरेट ही रहता है, मोर ऑफ इजी साइड आई वुड से। क्लियर? सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि क्या ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल रहता है ऑफ FCI AG3 एग्जाम। एंड नाउ अगर आप सोच रहे हो प्रिपरेशन करने के लिए, सो यू कैन स्टार्ट विद इट, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Before I end this video, I wanted to show you guys our courses. So if you are interested in enrolling our course, or if you're interested in in preparing with us, so you just need to go and type edutab.in on Google, and you can see there is a website that we have launched for you, and you have to just go to the courses and search FCI AG3. Okay, so all courses, FCI courses. Then you can see here we have launched courses for technical general depot. Okay, so if you want to prepare with us, you can just refer to these courses, enroll with us, and we'll surely help you in your preparation. So that's all for this video. I hope you have enjoyed. Thank you for watching. Thank you so much.